ये मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से पंकज जोशी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से प्रतीक सिंह जी, आम आदमी पार्टी से संगीता गौर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, और अर्थशास्त्री हैं सीए रुचि गुप्ता। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रुचि, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मेरा कमेंट ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा पॉलिटिशियन का बनाया हुआ बजट लग रहा है, इस पर आप मुस्कुरा उठी तो शायद मेरी बात में कोई दम होगा। आपके लिए ये बजट अच्छा है, एवरेज है या ख़राब है, और उसका शॉर्ट में रीज़न दे, फिर मैं सवाल पूछूंगा। नमस्कार। मेरा मानना है कि बजट काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इसमें हर वर्ग को इम्पोर्टेंस दी गई है, उनके बारे में सोचा गया है। स्पेशली एमएसएमईज और मिडिल क्लास पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो मेरे लिए ये प्रोग्रेसिव बजट है और हम प्रोग्रेसिव इंडिया की कामना करते हैं इसके बाद। अच्छा, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की थी, एक बार वो सुन लेते हैं और फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। A time on it, and deriving from that, everything which has been said in the budget falls in place. But with that said, yes, your question is on the point there is we wanted to simplify the approach to taxation also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%, because we worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it, but the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years, encourages investment in the markets. With that said, I'll ask Somanathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics. So you had there were, I think, two or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property and gold. Now, as regards the equity, yes, it has gone up from 10 to 12.5, but you will also find that unlisted equity has gone down from 20 with indexation to 12.5 without indexation. Basically, we have a very, very simple, easy regime. All listed, all unlisted are at 12.5% long term. And all are at 20%, I mean, equities are at 20% and everything else is at applicable rate for short term. So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. And Sanjay, would you like to add anything? One point I would like to add over here is that we also need to keep in mind as to the kind of people who are actually paying these taxes, the capital gains on the securities, the listed securities especially. And so over there, when we did this analysis for the year 22-23, we found that about 88% of the tax is actually coming from people who have an income of more than 15 lakh. 61% of that income is actually coming from people who have an income of more than 1 crore. That is income on capital gains on this. And we are all aware that otherwise, the standard rate is, about 30%. And for some, it can go up to 39%. So this marginal, very small marginal increase is actually impacting only those, primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3. On capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs.
a lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side. And in the speech, you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue and where are you going to recoup this revenue from? First of all, it is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high. And their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax-based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up. Then we had for almost now 3 years been talking about asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land which is available with PSUs which can be utilized for better purposes. That's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for. Is our बजट की चर्चा की ओर रुख करते हैं। रुचि, आपने कहा कि ये बजट प्रोग्रेसिव है। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ। कैपिटल गेन वाली घोषणा ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन ये तो डेस्परेशन दिखाता है ना, आप कोई नए रेवेन्यू सोर्स तो ढूंढ नहीं रहे, तो प्रोग्रेसिव कैसे? दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकम टैक्स वाले स्लैब ने भी काफी सुर्खियां आज बटोरी है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का, ये भी एफएम मैडम ने कहा। मतलब एक्ट फिलहाल ब्रोकन है, या ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ब्रोकन है, तो हम उसको भी एंजॉय कर लें, ऐसी सिचुएशन मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही। मतलब प्रोग्रेसिव किस तरह से, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। प्रोग्रेसिव ऐसे है क्योंकि बैलेंस्ड बजट है ये, इसने ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों पे ध्यान दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्रीकल्चर के अलावा अर्बन के लिए भी कुछ ना कुछ बजट में आया है। जहां बात करते हैं टैक्स रिजीम के बारे में और टैक्स में चेंजेस के बारे में, काफी टाइम से टैक्स स्लैब्स में या हम बात करते हैं डिडक्शंस में कोई चेंजेस नहीं थे। हालांकि मार्जिनली बोलूंगा मैं, 50 से 75 ही तो किया है, ऐसे कोई जितने समय से नहीं हुआ उसके हिसाब से कोई राशि भी तो नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि न्यू टैक्स रजीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम पीरियड चल रहा है और हम बहुत सारे रिटर्न्स डेली बेसिस पे फाइल करते हैं, और हमने ऑब्जर्व किया है कि न्यू टैक्स रजीम ऑलरेडी बहुत ही बेनिफिशियल है। काफ़ी मार्जिनल नहीं कहूँगी मैं, काफ़ी अच्छा टैक्स सेविंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं इससे। तो अगर हमें 25,000 का एग्जेम्पशन मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रहा है, साथ ही साथ अगर हम बात करें नए टैक्स स्लैब्स की, नए रेट्स की, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव रहा है। और ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्पेशली, जो बहुत ही कम सैलरी में रहते हैं या सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, साबित होगा। लेकिन कुछ आया है और कुछ आते आते आया है, जैसे गोल्ड की ड्यूटी घटा दी गई जी। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली तो सेविंग से जुड़ना चाहिए था, लेकिन क्या इस इंडियन मेंटालिटी के मॉडल को एफएम मैडम या जिसने किसी ने भी बनाया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी ने बनाया, इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप पूरी तरह से। सेविंग्स कैसे बचाएंगे? मतलब गोल्ड पर आपने ड्यूटी जो घटा दी, तो वो तो हमारे लिए सेविंग वाला स्टैंडर्ड भी तो थोड़ा सा हैपजार्ड में डालता है। सेविंग तो आपकी हैबिट होती है, तो सेविंग तो आपको अपने इनकम स्ट्रक्चर से निकालनी ही पड़ेगी। वही कहते हैं ना, बैलेंस्ड होना चाहिए आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, उसी तरह से आपको सेविंग ड्राइव करनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करना, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। जैसे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, जिसमें गोल्ड की ड्यूटी आप बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली, तो गोल्ड की ड्यूटी कम करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे आपके पास एक्सपेंडिचर को लेकर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले पंकज जी मुझे एक बात बताइए। मैं इतने ध्यान से पूरा बजट मैंने सुना, 2047 का मेंशन मेरे को नहीं सुनाई दिया, अमृतकाल का मेंशन मेरे को नहीं सुनाई दिया, विकसित भारत का मेरे को मेंशन नहीं सुनाई दिया, आत्मनिर्भर का मेंशन मुझे नहीं सुनाई दिया। क्या मोदी 3.0 यानी एनडीए सरकार की प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, या
या थोड़ा सा प्रायोरिटीज ने डाइवर्जन लिया है? नहीं स्वप्निल भाई, बिल्कुल नहीं लिया। आप देखें तो 2047 की जो बात है, देखिए कहना एक अलग चीज़ है, क्योंकि बार बार उनको कहते हैं तो फिर बजट में ये कि 1.5 घंटे का बजट और भी बढ़ा देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें चीज़ें, लेकिन 2047 का जो पूरा वो जो एक तरीके से मैप है वो उसको जो है उन्होंने अंदर लिया है, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे नहीं, पर अगर आप उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उसका मेंशन तो मिलेगा ना। मतलब जब दिया कुमारी का स्पीच देखिए आप, कितनी बार मेंशन सुना हमने 2047 का, विकसित भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, और जब सेंटर का ही बजट आ रहा है और हम ये 4 स्पेसिफिक टर्म्स जो पिछले 10 साल से हम बार बार सुनते आए वो ना सुनाई दे। टर्म्स एक अलग चीज़ हो सकता है, टर्म्स उन्होंने नहीं बोली, लेकिन टर्म मैं कह रहा हूँ आपको कि बजट को एक बार बनाने के बाद और एक बार करने के बाद, क्योंकि 2047 का मैप जो है दे चुके हैं, तो जब एक बार मैप दे चुके हैं तो बेसिकली उसके ऊपर काम जो है लगातार रेगुलरली, जो अभी रुचि जी ने कहा कि कंसिस्टेंसी जो है बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए बजट में जो 2 चीजें हैं, कंसिस्टेंसी इसी सेंस में बन रही है कि नहीं, क्वेश्चन यही है। अगर प्रायोरिटीज चेंज हुई है जो आपको डाइवर्जन के साथ इन्हीं 4 शब्दों पर ले आए तो वेल एंड गुड, ला रही है कि नहीं वो क्लियर नहीं है, डेफिनेटली देखिए, क्योंकि खुद बजट स्पीच में इन शब्दों से बचा गया, तो हो सकता है वो डाइवर्जन या प्रायोरिटीज चेंज नहीं उस तरफ जा रहा है। आपको नहीं दिखेगा। एक्चुअल देखिए, आप एक्चुअल देखिए कि सबसे बड़ा कैपेक्स जो है ना, सबसे बड़ा कैपेक्स जो है इस बजट के ऊपर है। अच्छा। 11.11 लाख करोड़ का कैपेक्स है। तो ये जो कैपेक्स है बेसिकली ये आपको जो है आगे ले जाने का बजट है, क्योंकि कैपेक्स जो है वो तभी होता है जब बेसिकली आगे के लिए आप आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं। तो 11.11 करोड़ का कैपेक्स देखिए, उसके बाद में आप देखिए कि जो भी क्षेत्र है, जब आप कैपेक्स देख रहे हो तो मुझे बताओ नए रेवेन्यू का सोर्स क्या है? नहीं सर देखिए, बताइए सोर्स नहीं है, सिवाय कैपिटल गेन की क्या ऐसा नहीं सोर्स सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं, जब आपने कैपेक्स का टर्म उठा ही लिया है तो फिर मैं एक्सपेंडिचर पे भी आ ही जाता हूं, मैं पहले ही आ जाता हूं। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम है हमारा, ये किससे छुपा हुआ है? अब आप ये कहेंगे कि हमने आंध्र प्रदेश में एक यूनिट दे दी है, तो वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो क्या है? सबसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 2017 टू 2019 है ना, आवर लॉस ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो है, पीएसयू सेक्टर लॉस जो है, वो लगभग 80,000 करोड़ था जब सरकार का जो था। और उसके बाद 2014 से देखिए लगातार जो है उसके प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से बेसिकली जो है फिक्टिटियस प्रॉफिट्स थे। रुचि जी अच्छा बता पाएंगे उसको। और उसके बाद में आप देखिए कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले जब आया तो हमारा जो बेसिकली पीएसयू का और जो इसका था अपना प्राइवेट सेक्टर का बैंक का जो था 1,43,000 करोड़ रुपया जो है फाइनेंस सेक्टर की जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो प्रॉफिट है वो जो है सरकार का है। सरकार का आप देखिए कि जो अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस बात का क्या रिफ्लेक्शन, नहीं इस बात का क्या रिफ्लेक्शन है कि जब एग्जिट पोल आपके फेवर के आंकड़े बम दिखा रहे थे तब पूरे मार्केट ने तालियां बजाकर आपका स्वागत कर दिया और शेयर मार्केट देखने लायक स्तर पर था। उसके बाद जब आप आए तो उस दिन भी ठीक ठाक था, शपथ ग्रहण के दिन भी ठीक ठाक था, अच्छा खासा था। आज ही क्यों बजट के साथ हरियाली जाती हुई दिखाई दी शेयर मार्केट से? देखिए स्वप्न भाई, देखिए कैपिटल मार्केट का देखिए बड़ा रीजन आप देखिए, कैपिटल मार्केट में आज जो आप यदि स्तर देखेंगे तो कैपिटल मार्केट का जो स्तर है वो आप देखिए कि 100 से नीचे तक सेंसेक्स से लेकर के 1100 तक का सेंसेक्स का वो है। तो रीजन क्या है, जो अभी जो एफएम मैडम ने जो कहा वो आपने बिल्कुल देखिए कि सीतारमण जी ने जो कहा वो बिल्कुल साफ कहा कि जो टैक्स रेट 12.5% जो किया आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, वो इसीलिए किया कि आपका जो बेसिकली गेनिंग है, जो कैपिटल गेन जो लग रहा है उसके ऊपर चीजें हैं, आप देखिए कि एक दिन का जो गेन होगा, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए कैपिटल मार्केट जो है सबसे बड़ी चीज है कि आपके लॉन्ग टर्म चीजों को बड़ी देर से बुनाता है। लेकिन बजट स्टॉक मार्केट पर लगाम लगा रहा है और इसीलिए लगाम नहीं है, लगाम तो लगा रहे हैं। नहीं देखिए कोई लगाम नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या? नहीं देखिए लगाम लगाने स्वीकार करने में क्या बुराई? किसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? एक तरह से तो आप स्टॉक मार्केट पर लगाम लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं इस बजट के जरिए, ये तो अच्छी बात है ना, पूरा मिडिल क्लास आपकी नहीं, लगाम नहीं है, ये लगाम नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने जो बात कही ना आपको, उन्होंने कहा कि रेशनलाइज करना, देखिए लगाम लगाना और रेशनलाइज करने में फर्क है। आज मुझे बताइए रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? नहीं मैं कह रहा हूं रेशनलाइज का रीजन क्या होना चाहिए? अरे पर रेशनलाइज करने का रीजन क्या होता है? नहीं लगाम लगाना ही तो होता है। देखिए ऐसा नहीं, जो टैक्स कम दे रहा है, मुझे बताइए कि आज मुझे बताइए कि मैं घर में यदि 1 लाख सैलरी लेके जा रहा हूं, मेरा ब्रदर जो है 20,000 सैलरी लेके जा रहा हूं, है ना, तो क्या मेरे फादर ये कहेंगे 18,000 तुम दोनों दीजिए? अच्छा है, ठीक है, कह सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं कह सकता, क्योंकि देश में देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि जब बात चीजों की आती है तो बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूशंस की बात आती है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशंस कहां से आएंगे। ठीक है, और मैं प्रतीक को भी शामिल करता हूं डिबेट में। प्रतीक भाई देखिए अमूमन क्या होता है ना, विपक्ष से पहला सवाल एंकर्स ये पूछते हैं कि इस बजट में आपको सबसे ज्यादा क्या ठीक लगा या ऐसी कोई घोषणा जिसका आप स्वागत करें। मैं आपको बता देता हूं आप किसका स्वागत करेंगे। आप इंसेंटिव वाले कदम का स्वागत आपको करना चाहिए क्योंकि वो तो आप ही के घोषणा पत्र में था, और इंसेंटिव रिलेटेड दूसरी घोषणा है वो भी आपके घोषणा पत्र में थी। तो अब आप बजट को 0 नंबर तो नहीं दे सकते, कुछ चीजें तो आप ही की सोच वाली है इसमें, क्या कहेंगे? स्वप्निल भाई राजस्थान में बैठे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही पूछ लेता हूं कि इस पूरे बजट के अंदर 0 राजस्थान जवाब पहले ही दे को क्या देता हूं, कुछ नहीं है, आगे बताइए।
है ना। राजस्थान को क्या मिला, जब नवंबर के अंदर जब चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी दी गई थी यहाँ पे, जब सारे जो घोषणा पत्र छापे गए थे उसके ऊपर लिखा हुआ था मोदी की गारंटी, वही राजस्थान को मिला। ये अलग बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को एक्स्ट्रा मिला। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, जब मोदी की गारंटी दी गई थी और उसके बाद में बड़े हल्ले किए गए, ईआरसीपी, कितना रुपए दिया गया ईआरसीपी को इस बजट के अंदर? 0, 1 रुपया नहीं दिया गया ईआरसीपी को। और यहाँ पे लगाड़े बजा रहे थे ईआरसीपी। नहीं, ये मेंशन्ड कहाँ है? वो क्या मेंशन्ड कहाँ है? नहीं, ये मेंशन कहाँ है? जो 50 तरह की योजनाओं की घोषणा हुई है उसमें कहीं ना कहीं से शामिल करके कुछ ना कुछ मार्जिन तो निकाल लिया जाएगा आगे पीछे। जब नहीं, अगर आपको किसी एक योजना को पैसे देने होते हैं, क्योंकि आपको पता है 50 हजार करोड़ की परियोजना है वो, तो 200-400 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होगा उसके अंदर। जब 15,000 करोड़ रुपए अमरावती को दिए जाते हैं, जब बिहार को दिए जाते हैं, तो राजस्थान में ईआरसीपी का जिक्र कहाँ है? पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ डिफेंस में, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य, आपको पता है पड़ोसी देश जो है, ना चाइना से हमारी बनती है और ना पाकिस्तान से बनती है, दोनों हमारे दुश्मन देश है। जब अंतरिम बजट आया था फरवरी के अंदर, तो वो अंतरिम बजट था 6.21 लाख करोड़ रुपए का, जो अंतरिम बजट था उसके अंदर प्रावधान किया गया था। अब उसके अंदर कटौती कर दी और अब मात्र 4.54 लाख करोड़ रुपए का इसको बजट कर दिया गया रक्षा का। तो रक्षा बजट के अंदर कटौती की गई। उसके बाद में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं प्रतीक भाई, अंतरिम बजट में जो घोषणा हुई थी वो इस महीने के एंड तक रहनी थी। मेरे ख्याल से उसमें उसका पार्शियल यूटिलाइजेशन तो हुआ ही होगा, और अब जो बचा हुआ समय है उसके लिए इस वाले में घोषणा हुई है, क्योंकि 1 तारीख से चीजें बदल जाएंगी। स्वप्निल भाई, जो अंतरिम बजट है उसके अंदर इस महीने तक का था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो 24-25 का बजट का अंतरिम बजट था, और उसके हिसाब से जो प्रावधान थे वो 6.6, मैं बता रहा हूँ। तो उसका यूटिलाइजेशन तो होगा ना प्रतीक भाई, अपन कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, अब सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। पूरे 24-25 के लिए जो उन्होंने जो अलोकेट किया था वो 6.21 लाख करोड़ रुपए का था अंतरिम बजट के हिसाब से, और अब इन्होंने कर दिया उसको कम करके 4.54 लाख करोड़ रुपए। ये अखबार के सोर्सेज से बोल रहा हूं मैं, मेरे मन से नहीं बोल रहा, ये मेरे महीनों के लिए मैं कह रहा हूं, कितने महीनों के लिए, ये भी तो हमें समझना होगा। हम क्रिटिसाइज करें, ये साल का प्रावधान, अब बचा हुआ टाइम ना साल का। नहीं, 6.21 लाख करोड़ रुपए था, वो पूरे साल का था, उसके हिसाब से क्वार्टर का निकाला गया। और 4.54 लाख भी जो इस बाजार में में लाया गया इस बजट, उसमें से क्वार्टर का कितना बनता? तो कम किया है। उसमें से क्वार्टर का कितना बनता? समझ ही नहीं रहे आप अभी भी बात को घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने पूरे साल में खर्च करने का प्रावधान 100 रुपए किया था, और अब मैंने उसको कम करके पूरे साल में खर्च करने का प्रावधान 80 रुपए कर दिया। वो प्रावधान जो खर्च करने का है वो कम कर दिया इन्होंने रक्षा बजट के अंदर। और उसके अंदर भी आप देखिए 67% जो बजट है रक्षा का, वो सैलरी और पेंशन में जाएगा। जो हथियार खरीदने का बजट है वो भी कम किया गया। ठीक है। अब दूसरा आता हूँ शिक्षा। मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, लेकिन पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने दें। जब तक इस देश के अंदर शिक्षा नहीं बढ़ेगी, शिक्षक अच्छे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता, विकसित नहीं हो सकता। हम हमारी जीडीपी का मात्र 2.82% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, जबकि यूपीए के समय पे हम 4.2%, लगभग दुगना खर्च कर रहे हैं। ठीक है प्रतीक भाई, अब ठीक है। हेल्थ आम आदमी पार्टी के गेस्ट मेरे साथ अब चेंज हुए हैं। अशोक कुमार जी आम आदमी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, मैं आपसे बात करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लगा इस बजट में आपको? कुछ चीजें तो वो थी जो INDIA की वादों में भी शुमार करती थी, जिन्हें बजट में स्पेस दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन क्रिएटिव क्रिटिसिज्म की मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। देखिए, ये जो बजट है ये भावनाओं के अनुरूप नहीं है जनता की, और जो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुईयां, क्यों अनुरूप नहीं है? इस बजट की है। जब टॉप कंपनियों को ये किया जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप करानी होगी, जो 15 लाख इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, 35 लाख जो युवा है वो बेरोजगार हो चुके हैं। आज जो देश की स्थिति के, जो आर्थिक व्यवस्था के खस्ता हाल हैं, और जो जिस प्रकार से नीट में जो स्कैम हुआ है, इसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान जो लैंडलॉक इलाका है, नहीं 2 सेकंड अशोक भाई, आसपास में जब मैंने आपसे कहा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एटलीस्ट देखिए, नीट की कोई घोषणा बजट में उम्मीद कर रहे थे? सर सुनिए, राजस्थान लैंडलॉक इलाका है, इसमें कोई आसपास में कोई पोर्ट नहीं है। तो राजस्थान की जनता थी, उसकी ये आकांक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ होगा, लेकिन राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। उतना ही जितना सबको मिला सिवाय बिहार और आंध्र प्रदेश के, बाकी सबको जितना मिला उतना ही राजस्थान को मिल रहा है। यहां तक मैं आपके क्रिटिसिज्म से बिल्कुल सहमत हूं। आगे
अब देखा जाए तो पिछले 10 साल के अंदर जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी, वही है फाइनेंस मिनिस्टर। ये 7वीं बार उन्होंने किया है। हाँ खैर, ये 7वीं बार उन्होंने किया है। लेकिन हाँ। बजट जो अर्थव्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आप देख सकते हैं कि 14 से पहले जो देश का जो कर्जा था वो 75 लाख करोड़ का था। अब जो कर्जा है वो 300 लाख करोड़ से ऊपर का है। यानी देश की जो अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने का काम किया है तो हमारी वित्त मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं नहीं, जनता को अंतरिम से ज्यादा राहत फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट में है, जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूं। अंतरिम से ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन इस बजट में नजर आता है। अंतरिम में उतना नजर नहीं आया था, इस बात को तो मैंने जमकर उस दिन क्रिटिसाइज किया था। रुचि गुप्ता शायद मेरी बात से सहमत होंगी। हाँ है, इसमें फिस्कल डिसिप्लिन का पुट्स तो है, अगर हम देखते हैं सरसरी तौर पर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं बहुत देर से सोच रहा था मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा, आ गया वो वक्त, मैं कर लेता हूं। हम सभी जानते हैं हमारा कंजम्पशन कमजोर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार को लेकर भी क्या स्थितियां, ये किसी से छिपी नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो इस बजट में की गई है वो ये कि कई सारी योजनाओं की झड़ी लगा दी गई है कि हम ये भी योजना करेंगे, ये भी। कोई एक तो गोली निशाने पर लगेगी। अगर आपने मशीन गन का मुंह खोला है तो एक आध गोली के तो निशाने पर लगने के पूरी तरह से चांसेस होते हैं। उसी पर छोड़ा गया है। इनके जो वादे थे वो एक भी पूर्ण नहीं हुए। हाँ ठीक है। और रुचि, इन्होंने जो मैंने आपसे कहा उसको, ठीक है अशोक जो भाई, है दूसरे को भी बोलने का कांग्रेस मौका का- देते हैं। हाँ रुचि बताएं। नहीं, मेरा ये मानना है कि एक्सपेंडिचर डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि सेक्टोरल डिफरेंसेस हैं, हाँ, हर है। तरफ नहीं है, बट ऐसा बात नहीं है। बहुत सारी नई पॉलिसीज, बहुत सारे नए इंसेंटिव्स इस बजट में पेश किए मैंने वही गए। कहा, नई पॉलिसीज के साथ ये कर दिया कि भाई 4 बार निशाना लगाएंगे तो एक तो लगने के चांसेस है ही ना। हमने चांसेस पर छोड़ दिया है, लेकिन एटलीस्ट वो स्पेस दिए जिसमें चांसेस के पूरा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि इंसेंटिव्स हैं, इंसेंटिव्स को यूटिलाइज किया जाए। एमएसएमई के लोन की लिमिट बढ़ा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, जो बहुत टाइम से वेटेड भी था, उसको फुलफिल किया गया है। फीमेल के लिए एक अच्छा बजट इसमें लाया गया है। सेक्टोरल ग्रोथ है। अगर हम बात करें डिफेंस के लिए बहुत अच्छा बजट दिया गया है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि डिफेंस का बजट जो कट डाउन किया गया है उसे लेकर क्या स्थितियां बनती हैं? बजट तो बैलेंस करना ही पड़ता है, बाकी सेक्टर्स भी हैं जिस पे हमें फोकस करना पड़ता है। इसी वजह से जो है डिफरेंशियल रेट्स हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम ये देखें कि हम टेक्नोलॉजी पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एमएसएमई में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंफ्रा पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम कितना पैसा हम डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में लगा रहे हैं, उसमें अच्छा फोकस इसमें दिया गया है। अच्छा पंकज भाई, मुझे एक बात बताइए। चलिए आंध्र प्रदेश तो मैं समझ सकता हूँ, बिहार में तो मतलब आप और जेडीयू ही तो रहे हैं लंबे समय से, इसके बाद भी स्पेशल पैकेज की जरूरत पड़ रही है, तुम आप वहां कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे क्या दोनों साथ में मिलकर? ये इंडिया के ज्यादा तो एनडीए का बजट नजर आता है सोशल मीडिया को, मुझे नहीं। बिहार को और टीडीपी को, आंध्र प्रदेश को जो इस तरह से लमसम दिया गया, उसका आधा, 1/4, 1/2 राजस्थान की किस्मत पे ना आना, वो भी 4 सेंट्रल मिनिस्टर के बावजूद, क्या ये सवाल नहीं खड़े करेगा आप लोगों के लिए? ये सवाल आपका पीछा करेगा? स्वप्निल भाई, प्रश्न तो तब पूछा जाना चाहिए था कि जब जो है कि इनके सहयोगी दल थे और 2 लाख करोड़ का जब इन्होंने घपला किया, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जवाब देखा था आपने? क्या था कि हमारी सरकार जो है, सुनिए एक मिनट, प्लीज एक बात, ठीक है। हाँ प्रतीक भाई, हाँ, ये तो ये पूछते हैं कि साहब ये इसने बताना चाहिए था इनको। तो ले। हाँ अरे बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं भैया, सुनिए भैया, सुनिए। हाँ टीडीपी की सरकार बनी है अभी, उससे पहले अमरावती को वहां पे कैपिटल नहीं बनाया जा रहा था, तो 1 महीने के अंदर डीपीआर बन गई क्या, जो वहां पे 15,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। अरे तो एक अमरावती को कैपिटल नहीं बनाया, अरे यार, आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं, अरे आपको दुख हो रहा है क्या स्टेट को राजधानी देने के लिए? पंकज जी रुक जाइए, आपको दुख है क्या? पंकज जी रुक जाइए अमरावती के लिए। पंकज जी 2 मिनट रुक जाइए। मैं समझा नहीं, अमरावती को कैपिटल नहीं बनाया जा रहा था मतलब? पहले जो दूसरे दूसरी पार्टी की सरकार थी अमरावती के अंदर, वहां पे काम नहीं रुक गया था, और अरे टीडीपी भैया, की सरकार किसकी ने सरकार बोला थी है कि हम बताइए? उसको बताइए ना किसकी सरकार? तेलुगु देश 10 साल के लिए आपने हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बनाया था ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए। सुनिए, फिर आप सुनिए, उस पीरियड में अमरावती को डेवलप होना था, नहीं हुआ। सुनिए फिर बताता हूँ। अब आप पूरी बात सुनिए। जब हमने अलग किया था, उसके बाद में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार आई थी, उसने बोला कि हम अमरावती को कैपिटल बनाएंगे, और केंद्र सरकार से उन्होंने बजट मांगा। यही तो प्री प्लान था ना?
सुनिए तो सही पूरी बात। प्रतीक भाई, यही तो स्वप्निल प्री भाई, प्लान पूरी था। बात सुनिए। हाँ। पूरी बताऊंगा, पूरी बात सुनिए हाँ, आप। हाँ। उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू को जब स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया, उन्होंने एनडीए से अपना पीछा छुड़ा लिया और एनडीए छोड़ के चले गए। उसके बाद में जब वाईएसआरसीपी का जब राज आया, वाईएसआरसीपी ने अमरावती का डेवलपमेंट रोक दिया। उसके बाद दोबारा तेलुगु देशम पार्टी की अभी सरकार आई है, 1-1.5 महीने पहले दोबारा काम अमरावती में चालू किया गया है। तो इतनी जल्दी वहां पे डीपीआर बन गई जो 15,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन कैपिटल अरे तो काम शुरू हो गया, आप खुद कह रहे हैं। आप सुनिए अरे सुनील भाई खुद कह रहे हैं काम शुरू हो गया, काम रोक दिया गया। तो मुझे बताइए बिना डीपीआर काम हो बात तो है ही नहीं। गया, कैसी स्थिति है लोगों की तरफ? बात वो है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब काम शुरू हो गया, काम रोक दिया गया, दो मिनट, डीपीआर रोक दिया गया। प्रतीक भाई आप भी जानते हैं, बड़े अजीब पंकज जी क्वेश्चन भी है, जानते हैं। आप नहीं, 2 सेकंड, मैं एक बात क्लियर कर दूं। मुझे पंकज जी पूरी आप बात भी जानते हैं और करने प्रतीक भाई आप भी दीजिए। जानते हैं। नहीं बनाने मैं दी। साउथ से ही आया हूँ, मैं साउथ से यहाँ पर आया हूँ और मैं देख कर आया हूँ वहां पर मुझे क्या। पूरी बात अमरावती में करने काम रुका नहीं था मेरे दादा। को- प्रतीक भाई, आप अमरावती में मुझे- काम रुका नहीं था। चंद्रबाबू ने फिर अपना पेट चंद्रबाबू प्रोजेक्ट नायडू बनाकर झूठ रखा बोल था रहे कि मैं इसको आईटी सिटी बनाकर चंद्रबाबू छोड़ूंगा। नायडू जी झूठ बोल रहे हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू जी झूठ बोल रहे हैं क्या? वो तो हर स्पीच में यही बोलते हैं। हर रैली में उन्होंने यही बोला है। वहां पे जब चुनाव हुआ है आंध्र प्रदेश में, हर रैली में उन्होंने यही वो बात बोला है। कैपिटल- तो या तो आप सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप काम बता वहां पर दीजिए रुके क्या नहीं है। थे। अब दूसरी बात गति सुनिए। धीमी अब हुई आप थी, दूसरी- काम रुके स्वप्निल नहीं थे, भाई, विजन तैयार था स्वप्निल भाई, अब अमरावती आगे को की बात लेकर, सुनिए। उस पर लोग चल अरे नहीं पाए आगे ढंग की से। बात तो सुनिए हाँ। स्वप्निल भाई, आगे की बात सुनिए। हाँ। ये कह रहे हैं हमें दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 की जगह 25,000 करोड़ दे दीजिए। हमें भी तो दे देते 5-10 हजार करोड़ रुपए। हमारे राजस्थान के अंदर भी कुछ दे देते। राजस्थान हाँ, के किसी मैंने प्रोजेक्ट वही को दे कहा कि देते। मुझे भी बजट में यमुना जल राजस्थान सुनाई नहीं समझौते को दिया, ये दे बात देते। मुझे भी अखरी है। ERCP इसमें मैं को कोई दे अरे देते। नहीं। अरे भैया, अरे प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, प्रतीक भैया, पंकज जी, अरे मैं बताता हूँ प्रतीक भैया, आपकी रिंग रोड बुलाने के लिए जो है सरकार ने दिए थे पैसे। कौन सी भूलते हैं यार आप? 2 मिनट, हैं? मैं अभी भी दे देते। आपकी सरकार होते हुए दिए हमने भाई। 2 मिनट के लिए। रुकिए, 2 मिनट रुकिए, अरे 2 मिनट भैया, रुकिए। सुनो। अशोक सिंह, NHI अशोक ने बनाया। सिंह, अशोक सिंह, मुझे एक बात मोदी की बताइए, गारंटी थी, अगर क्या हम हुआ? वो लोगों गारंटी की थी। इंटर्नशिप हमने के तो रास्ते आपको बनाया, अरे आपको 2 भी मिनट दिए। रुकिए ना मोदी बाबा, की मैं रोजगार पे ही आ रहा गारंटी हूँ। क्या? अशोक भाई एक बात बताइए, मोदी अगर गारंटी अगर फेल हम हो गई। लोगों की इंटर्नशिप के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करें, हमसे मतलब है कि केंद्र सरकार। अब आप ये मत कह देना कि मैं गोदी मीडिया हो गया क्योंकि मैंने हम बोल दिया। हम मतलब मैं एक देशवासी के तौर पे बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर हम लोगों की इंटर्नशिप के लिए अगर केंद्र सरकार कोई प्लान बनाती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जो भी भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसका मोटा मोटा खाका कल सामने आ गया। उसके हिसाब से हमें रोजगार की जरूरत है। कम से कम हर साल 80 लाख रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर वो असम्पशंस पूरे हो सकते हैं जो कल हमने फाइनेंशियल डेटास में देखे, जो कि एफएम मैडम ने हम लोगों के साथ शेयर स्वप्निल किए भाई, हैं, ये देश तो के साथ पूछिए शेयर 10 साल किए। में कितने दिए? अब आप ये पूछिए बताइए कि 10 क्या साल इस में बजट कितने से आपको दिए? लगता है कि 80 लाख रोजगार के अवसर पर ईयर बन पाएंगे, 80 लाख के आसपास? 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, इस 10 बजट लाख में आइए ना रुपए अशोक जो भाई। अकाउंट में आएंगे। सर 1 मिनट रुकिए। अब ये जो है 80 लाख रोजगार के वादे कर रहे हैं, इनकी स्थितियां क्या है सर? पी साईनाथ का मैं सर लेक्चर देख रहा था, उन्होंने बताया कि जो किसानों की जो ग्रोथ थी 2014 से पहले वो 17% थी और जो है एनडीए गवर्नमेंट में घटकर 12% हो गई। ये कैसे हुआ? अब अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, किसानों की बात तो आप- बेरोजगारी भी हाँ, बढ़ रही है। ठीक है, मैं किसानों की बात हुई तो है। कहीं ना कहीं मैं जो पंकज- सरकार है वो पंकज आंकड़े बहुत छुपा करते रही हैं। है रुचि आम गुप्ता, जनता से। किसानों के लिए इस बजट में आप क्या कुछ देख पा रही हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक बात जिसे लेकर मैं क्लियर हूं कि जो 3 कानून केंद्र सरकार पूर्व में लेकर आई थी उसकी दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है और न ही आय दोगुनी करने वाली कोई बात की गई है और न ही मुझे ऐसा कोई स्टेप नजर आ रहा है जो आय दोगुनी करने के साइड बढ़ता नजर आए कृषि बजट पार्ट में, इस बजट के पार्ट में। रुचि, कृषि बजट की अगर हम बात करें तो मैं मानती हूँ कि एमएसएमई सेक्टर को कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, एमएसएमई लोन्स का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, वो अपने आप किसानों के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से वो जुड़े हुए हैं। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन या इजी लोन मिलता है तो डेफिनेटली हर कोई प्रोग्रेस कर सकता है। दूसरी बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की बट कि लोन आय, इज नॉट इनकम ना। मैं कह रहा हूं कि किसानों की आय दोगुनी होने की तरफ क्या ये बजट आगे बढ़ सकता है? जैसे कि हमने बात की कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी फोकस दिया जाएगा या इस तरह के एग्रीकल्चर पे जो बजट एलोकेट किया गया है, उसके बाद डेफिनेटली किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों को काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद उसकी आय हमें भी भी। रोजगार के सबसे ज्यादा स्वामीनाथन अवसर हमेशा आयोग की की तरह रिपोर्ट दी, एग्रीकल्चर फील्ड में ही होने जो के कृषि चांसेस हैं। विशेषज्ञ थे उसकी रिपोर्ट के कौन सी सिफारिश को इन्होंने लागू करने का प्रयास किया? वो तो यूपी ने भी नहीं किया। ये स्वामीनाथन तो आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री यूपी में भी आ गया था, पत्र यूपी लिखते और थे एनडीए मनमोहन दोनों ने सिंह नहीं को। किया है। ठीक है, ठीक है, जो बहुत बहुत MSME शुक्रिया, जो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ MSME जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। पंकज भाई वेरी सॉरी, प्रतीक भाई वेरी सॉरी। फिलहाल इतना ही, ये था गारंटी वाला बजट और इससे जुड़ी और भी बारीकियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे लगातार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।